That's because इनिशियली तो ज्वाइनिंग वार्निंग में चला जाता है। बस हम लोगों का एक बैकअप ऑप्शन तो है ही है। पिछले बार भी बैकअप कौन था? जय गोयल था शायद। Good morning, sir. Good morning. So I think now let's start. Initial 2-4 मिनट तो logging in और good morning और Shivam has some problem with sound. मैसेज आया अभी तो सब लोगों ने yes बोला है तो यानी it's on है। चलो I think we were discussing about instruments अभी। तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था, that was moving coil galvanometer. Then we discussed about what is called as velocity selector. एक थर्ड इंस्ट्रूमेंट और भी है and that is called cyclotron. ठीक है ना? Now what is exactly a cyclotron used for? Now before I go to the use of the cyclotron per se, दिव्यम is every day in a investigative mode. बोल रहे हैं कि बिल्कुल बोर्ड पे सटा देते हो कैमरा, थोड़ा आगे पीछे भी दिखाया करो क्या है। I don't know what is the curiosity all about. चल anyway, cyclotron का यूज क्या है कि cyclotron is basically a today's kind of an instrument, or I won't say it's instrument, it's a device. Today's kind of मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के दिन में हायर फिजिक्स में, हायर फिजिक्स बोलते हैं आज के दिन में क्या रह गया ना, पार्टिकल फिजिक्स। दिस इज व्हाट इज कंसीडर्ड एज हायर फिजिक्स। और एक डार्क मैटर और वो सब डार्क एनर्जी वगैरह ये सब चीजों का भी कुछ चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। सो दोज आर व्हाट वी कॉल टुडेज हायर फिजिक्स। जैसे 100 साल पहले हायर फिजिक्स यूज्ड टू बी समथिंग लाइक व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, है ना, फिर वेव नेचर ऑफ मैटर, तो दैट यूज्ड टू बी हायर फिजिक्स अराउंड 100 इयर्स बैक। आज के दिन में हायर फिजिक्स बोलते हैं वही डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, फिर नया चीजें आ रहा है जैसे like as I said particle physics and so on. So the curiosity is mainly on particle physics. What are the different particles existing in nature? Maybe independently existing, maybe non-independently existing. For example, all of them cannot exist independently. For example, let's say take a quark. Now we know that charge is the fundamental unit. लेकिन cyclotron seems to be a robot name. Anirudh says Zoom updated. Chalo, maybe. Zoom has updated the security features. This is what I know. So let's continue. So what I was saying was that in particle physics, what interests scientists is whether the particles exist independently or does not exist independently, and what are the different kinds of particles. So as of now, there is a huge number of particles that has been discovered, primarily inside the nucleus. तो उसके ऊपर डिस्कशन तो देखो सिलेबस में नहीं है क्योंकि as I said that it's little high level of physics, but वो जो सारे एक्सपेरिमेंट्स है उनके कंडक्शन के लिए, और उसमें मेनली एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, that we have some kind of a target and the target is bombarded by very high energy particles and sometimes even medium energy particles also, not generally slow particles. Slow particles do not lead to anything. So medium high to high energy particles are bombarded on targets, and based on the kind of bombardment and also the kind of bombarding particle, we get different results, and generally the atom just simply disintegrates, and when the atom breaks, it releases many particles, some of which can exist independently and some cannot. So all these things are being investigated, और ये जितने भी सारे LHC and all those things जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, उसका starting point होता है cyclotron. अब कैसे? तो cyclotron is basically a device to produce
ओके, हाई एनर्जी पार्टिकल्स मींस हाई स्पीड पार्टिकल्स, ठीक है, हाई स्पीड पार्टिकल्स। क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल को स्पीड अप करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल को स्पीड अप करना बड़ा मुश्किल है, तो देयरफॉर जनरली नॉट ओनली दे आर जस्ट पार्टिकल्स, दे आर आल्सो चार्ज पार्टिकल्स। अब साइक्लोट्रॉन में क्या है ना, सो साइक्लोट्रॉन में ये है that there are two D's like this is one D and this is another D। ये जो मैंने बीच में स्पेस दिखाया, ये स्पेस इतना बड़ा नहीं होता, स्पेस इज लिटिल स्मॉल, आई मीन, बट एनीवे मैंने दिखाया सो दैट यू नो एटलीस्ट शो इट प्रॉपर्ली। यहाँ पे हम लोग एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स देते हैं so that there is a alternating voltage appearing across that section which is in between the two D's। इसकी वजह से क्या होता है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है एक बार ऐसे होता है, थोड़ी देर बाद ऐसे होता है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे होता है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे, यानी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बन कैसे रहा है, ऑसिलेटिंग वोल्टेज की वजह से। सो दिस इज बेसिकली एन ऑसिलेटर। we'll read a little bit more about oscillator in the coming chapters, so we are just focusing right now on this fact that it's an oscillator। इससे क्या होता है, यहाँ पे alternating electric field एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। Now you might see इसका नीड क्या है ना, और क्या है ना, और भी चीजें हैं, मैं बता देता हूँ क्या है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और वही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी यूनिफॉर्म है। इसके अंदर दो डीज के अंदर, यानी नेट नेट क्या हो गया, दो डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और दो डीज के स्पेस के बीच में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गिविंग एन ऑसिलेटिंग वोल्टेज। हो गया डिवाइस। अब इसका यूज कैसे होता है वो देखो। मैं क्या करता हूं, ये अगर सेंटर है ना, तो यहाँ पे ठीक सेंटर से थोड़ा सा ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करता हूं, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, और उस वक्त मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्या होगा, ये चार्ज इधर एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। तो मान लो ये जो स्पेस है, ये सपोज डी भाई, तो ये चार्ज क्या करेगा, इधर एक्सीलरेट करेगा। मैं थोड़ा डी को बड़ा बना देता हूं, इधर एक्सीलरेट करेगा। तो इनिशियली तो अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेट करके इट विल एंटर द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर आएगा, क्यू वी क्रॉस बी डाउनवर्ड्स। इसलिए क्या होगा, अगर ये सेंटर है मान लो, तो ये क्या होगा, ये ऐसे करके यू सेमी सर्कल बनेगा, क्योंकि एंट्री परपेंडिकुलर हुआ है, बनते ही वापस इसमें आ जाएगा। अब पता क्या होगा, इन द मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को पलट देंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पलट दूंगा, तो इन दैट केस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब उसको फिर से एक्सीलरेट कराएगा। यानी हम एक पर्टिकुलर वेंटेज तरीके से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्रीक्वेंसी रखेंगे, सो दैट जितने देर में ये चार्ज यूं ऐसे टर्न करता है, उतने देर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी टर्न कर जाए, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेंगे चार्ज, तो उतने देर में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके फेवर में आ जाए, यानी वेलोसिटी के फेवर में। तो क्या एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेट करके यहाँ पे एंट्री करेंगे दूसरे साइड के मैग्नेटिक फील्ड पे। जब दूसरे साइड के मैग्नेटिक फील्ड पे एंटर करेंगे, तब तक उसका वेलोसिटी बढ़ गया होगा, एंड वी नो दैट r इज इक्वल टू mv बाय qb। तो इसलिए क्या होगा, अब जिस रेडियस पे वो मूव करेंगे दूसरे साइड पे, वो बड़ा रेडियस होगा, इसलिए क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। जितने देर में वो उधर से टर्न करता है, उतने देर में इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर आगे कर देता है, यानी क्या होगा, फिर से ऑसिलेटर के फील्ड के बीच में आ जाएंगे और एक्सीलरेटेड होंगे, और वेलोसिटी फिर बढ़ जाएगा। वेलोसिटी अगर बढ़ेगा, तो दैट केस क्या होगा, फिर से ज्यादा रेडियस आ गया। फिर क्या होगा, ये देखो, फिर क्या होगा, फिर एंट्री, फिर एंट्री, फिर एंट्री, इस तरीके से देख रहे हो क्या हो रहा है। हर बार जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में आके उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है और रेडियस बढ़ जाता है, और हर बार उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मदद कर रहा है, क्योंकि उतने देर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पलट रहे हैं। अच्छा, एक फायदा पता क्या हो रहा है, कि यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई m by qb, उसमें वेलोसिटी का रोल नहीं है, वी नो दैट ऑलरेडी। t is equal to 2 pi m by qb, नाम ऑफ द चेंजिंग, यानी एक फिक्स टाइम बाद ही वापस आएगा, उतने देर में इलेक्ट्रिक फील्ड पलट दो, फिर फिक्स टाइम बाद इधर आएगा, फिर उतने देर में इलेक्ट्रिक फील्ड पलट दो, एंड सो ऑन। सो दैट्स द रोल ऑफ द ऑसिलेटर, यानी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हर बार स्पीड बढ़ता जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना पूरा एक लेवल लगा रहता है, विच विल इंडिकेट कि क्या क्या स्पीड है कहाँ,
क्योंकि हर रेडियस पे अलग स्पीड आएगा। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन आल्सो गेट दैट v इज इक्वल टू qbr बाय m। तो q b और m तो फिक्स्ड है, तो अलग अलग रेडियस पे अलग अलग वेलोसिटी होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक एग्जिट ट्यूब रखूंगा ऐसे। तो क्या होगा, ये चार्ज घूमते 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 जब यहाँ पे आएंगे तो इस ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है और उसके वजह से क्या होता है, वो सीधा उसके अंदर से निकल जाएगा। इट विल स्ट्रेट गो लाइक दिस एंड देन व्हाटएवर टारगेट इज देयर दैट विल बी हिट। जो भी टारगेट है वो हिट होता है। यहाँ पे जो है टारगेट है, दिस इज द टारगेट। तो यानी क्या हो गया कि अब मैं एक स्पेसिफिक वेलोसिटी का, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेडियस पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा और वो भी वहां पे चार्ट बना हुआ है पूरा। तो यानी ये जो सिलेंडर है ना, ये वाला, ये मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज अगर तुमको चाहिए बम्बार्डमेंट के लिए, जैसे मान लो मुझे चाहिए 5000 मीटर पर सेकेंड। अब 5000 मीटर पर सेकेंड चार्ज को दिखने वाला चीज तो है नहीं कि मैं उसको वीडियोग्राफी करके उसके बारे में पता कर लूं। तो 5000 मीटर पर सेकेंड है या नहीं, कैसे पता चलेगा? मैं इसके कैलकुलेशन का वैल्यू 5000 आने चाहिए। तो ऑब्वियसली वो मैं पहले से चेक कर लूंगा और फिर एक चार्ट बना दूंगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि 100 मीटर पर सेकेंड, 200 से 1000, 2000, 5000, 7000 जो भी है। और ये वाला जो पॉइंट है इस पे सपोज 5000 है, तो क्या होगा, ट्यूब को यहाँ पे सेट कर लो। तो घूमते 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 जो चार्ज इस ट्यूब पे एंटर कर गया वो सीधा इस टारगेट को जाके हिट करेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ योर चॉइस। दैट्स द पॉइंट। यानी बेसिकली क्या हो गया, अब हम इसमें वेलोसिटी चूज कर सकते हैं। ठीक है, so you might say ये भी तो एक तरीके से वेलोसिटी सिलेक्टर हो गया। See, this is a velocity selector of a different kind. ठीक है, agreed है। This is also one kind of velocity selector, but इसका purpose अलग होता है। Purpose is to conduct bombardment based experiments. ठीक है ना? Purpose is to conduct bombardment based experiments. अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, and that is, अगर मैं पूछता हूं how many circles has this charge done, कितने सर्कल्स ये चार्ज ने किया है। जनरली क्या होता है, हजारों में सर्कल करते हैं हम लोग, करते 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 धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, इज दिस व्हाट हैपेंस, वी स्टार्ट विद स्मॉल सर्कल एंड देन विद द बिगर एंड बिगर एंड बिगर सर्कल। तो ऐसे ही होता है। हाउ मेनी सर्कल्स हैज दिस चार्ज डन, ठीक है ना, बिफोर कमिंग आउट। अब वो कैसे निकलेगा, अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ई है तो हर बार जो वर्क डन कर रहा है वो क्या होगा, क्यू ई फोर्स इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। यानी हर बार जो वर्क डन होगा वो होगा क्यू ई इंटू डी, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो एवरी सर्कल, दिस इज द वर्क डन पर साइकिल। सिर्फ स्टार्टिंग के साइकिल में एक दिक्कत क्या है कि स्टार्टिंग के साइकिल में ये वाला पार्ट नहीं है, तो वाला मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस कॉर्नर से, है ना। तो दैट केस क्या होगा, ऐसे करके यूं करके ऐसे हो गया। वो उसको अगर थोड़ा सा रहने दो, मतलब उसको काउंटिंग को अगर डिस्टॉर्शन मत मानो। In that case 2 into Q into D is the work done per cycle. तो अगर n cycles होगा तो work done क्या हो जाएगा, 2 into Q into n into D. Now that will lead to kinetic energy change, जो कि क्या है, हाफ mv स्क्वायर, और v तो ये है ही है, is equal to half mv स्क्वायर। ठीक है, that is one way of looking at it. Another way of looking at it is that QE force है, ठीक है ना, और बाई एम एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डी एंड डी, तो 2d हो गया हर बार, तो 2n इंटू डी, और हर बार यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। तो यानी एक्सेलरेशन, उस पार्ट को अगर मैं सेपरेट सेपरेट कर लूं तो वी कैन जॉइन दीज स्मॉल एलिमेंट्स इन वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, एक्सेलरेशन ये आ गया, और v square is equal to 0 square plus 2a into s क्या हो जाएगा ना, 2nd, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग इट, व्हिच एवर यू आर कंफर्टेबल में। बात एक ही है, वो रिजल्ट तो वही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। वो देख भी सकते हो, देखो इसमें भी वही रिजल्ट आ रहा है, इसमें भी वही रिजल्ट आ रहा है। वो मैंने क्या किया, इसके जो एक बिट है, फिर दूसरा बिट है, फिर तीसरा, चौथा, इन बिट्स को क्या करो, ऐसे ऐसे करके एक एक करके जोड़, बीच में जो सर्कल हो रहा है दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन।
but we know that during that circle the speed is not changed. So therefore एक bit ऐसे, एक bit ऐसे, एक bit ऐसे, एक bit ऐसे, अगर इनको जोड़ते जाओ, so we will get a straight line where we can apply this. See, I know that the motion is non-uniformly accelerated. कि पहले इधर acceleration, फिर इधर acceleration, फिर बीच में circle भी है. I understand. That's why I'm collecting the bits of parts which are in electric field. और उसके ऊपर ये equation set कर. That's what I'm trying to do. ठीक है ना? So another way of looking at it है. तो इससे क्या होगा ना, number of cycles पता चल गया which this charge undergoes before it comes out. इसमें एक limitation क्या है कि इसमें जो है ना heavy particles से हम लोग use करते हैं. You might say what is the problem with electron? Electron के साथ problem क्या है कि electron is too light. Electron is too light. तो you might say इससे क्या होता है? Electron too light होने से क्या होता है? उसका जो acceleration होता है, that is E by m, that's too high. ठीक है ना? So therefore velocity becomes very very high. Now imagine an electron moving in this setup. तो इसका velocity इतना ज्यादा हो जाएगा that soon it will reach relativistic values. Relativistic values का मतलब होता है कि relativistic values में फिर ये सारे calculations बेकार हो जाएंगे. क्यों? कि उसमें फिर उसका mass भी बदलता जाएगा. And relativistic calculation says that mass is equal to m naught by under root of 1 minus v by c whole square. So therefore वो सारे calculations distort हो जाएंगे and we will not be able to have specific velocities of certain nature जो भी है in this. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग यूज नहीं करते, थोड़ा सा हेवी पार्टिकल्स यूज करते हैं लाइक प्रोटॉन्स एंड ऑल. एंड इनफैक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट आल्सो. क्यों? क्योंकि तो बहुत हल्के पार्टिकल्स अगर हिट करोगे ना टारगेट को, तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि टारगेट में जो एटम्स है ना बिल्कुल ब्लो ऑफ कर दे, पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाए, तभी तो उसके अंदर के पार्टिकल्स रिलीज होंगे. अगर हल्के फुल्के वेलोसिटी से किसी को भेजोगे या अगर हल्के से पार्टिकल को भेजोगे, वो टकराएगा वापस आ जाए, एटम पे कोई असर नहीं होगा, जो टारगेट एटम है उस पर कोई असर नहीं. हमें थोड़ा हेवी पार्टिकल्स चाहिए होता है. So that's why what we accelerate here is protons, alpha particles, and other positive charged ions. ठीक है ना? Or rather positive charged particles. That's what we do. Electrons are avoided, as I said, because of relativistic calculations. इसलिए हम लोग उसको avoid करते हैं. Yeah, D. Vedanta, D is that only. D is basically between the two D's. So D is the small gap that is there. और उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करता है. तो एक बार अगर यू पार करता है डी को, तो वर्क डन हो गया क्यू ई इंटू डी. लेकिन वो फिर ऐसे जाके फिर से होगा. तो अगर मैं इस पूरे को एक साइकिल मानता हूँ, तो इसलिए मैंने ट्वाइस किया, क्यू ई इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इंटू ट्वाइस. सो दैट इज अ वर्क डन पर साइकिल. ट्वाइस इसलिए क्योंकि एक बार इधर और एक बार इधर. तो इसको अगर एक साइकिल मानो, फिर अगला साइकिल में एक इधर एक इधर, फिर अगला साइकिल में एक इधर और एक इधर, तो वो चलता जाएगा. तो लाइक वर्क डन पर साइकिल. And then if n is the number of cycles, n is the number of cycles, n is the number of circles. ठीक है ना? Circles means cycles also in this case. ठीक है ना? और कोई सवाल है इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां तक का रेडियस है, बिल्कुल सही. ये जो मैं दे रहा हूँ ना ट्यूब, यहाँ तक का जो रेडियस है उसको मैं इस फॉर्मूला में यूज करूँ. अदरवाइज तो रेडियस तो हर सर्कल का अलग है. रेडियस तो हर सर्कल का अलग है. तो अगर मैं कैलकुलेशन में पुट कर रहा हूँ ये रेडियस, तो दैट इज द एग्जिट रेडियस, यानी सेंटर से ये वाला रेडियस. जो सर्कल बनता है वो सेंटर का ये वाला रेडियस. ठीक है? दिस इज दैट रेडियस. So the tube is kept here, let's say, तो in that case वो रेडियस हो जाएगा, कम हो जाएगा. नहीं करना. Manan, you are right. मैं पहले भी थोड़ा सा circumspect था. Now what Manan has said is that why are you telling it as circles? I understand it's not circle fully. So I think cycles is a better word. I understand. But देखो ऐसा है ना, ये जो D's का जो gap होता है वो बहुत कम होता है. तो compared to the gap of the D's, initial अगर 2-4 circles छोड़ दो, तो उसके बाद देखना circles काफी बड़े होंगे compared to the separation of the D's. So it's okay. I mean, this word has been slightly loosely used in the sense कि I understand it's not a circle, क्योंकि बीच में कुछ part straight line भी है, but ठीक, उतना तो loosely चलता है. Yeah, I mean there is a question regarding the electron also. Akshit has asked
कि ठीक है इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ तक एक्सीलरेट मत करो, यहीं तक कर लो। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी, अब चलो ठीक है कंपैरिजन करो, सपोज तुमने इसको डिजाइन किया एक प्रोटॉन के लिए, ठीक है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन यूज कर लो, यानी उसके एक्सेलरेशन 1836 या जो भी नंबर ऑफ टाइम्स होता है वो उतने टाइम ज्यादा होगा। अब इमेजिन करो जो भी एक सर्कल के बाद वेलोसिटी होना होता है, एक सर्कल, जो भी एक सर्कल के बाद वेलोसिटी होना होता है, चलो सर्कल नहीं साइकिल कह दो साइकिल सर्कल वर्ड पे आपत्ति है, ओके आई एक्सेप्ट इट, नो प्रॉब्लम। तो अगर एक साइकिल के बाद जो भी प्रोटॉन का वेलोसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 1836 यानी ऑलमोस्ट 2000 गुना ज्यादा होगा। अब एक दो साइकिल के बाद जो वेलोसिटी होना है, मतलब वो 2000 गुना ज्यादा करके देख लो, तो इट विल very quickly shoot up to velocities very close to speed of light. And the moment you go to very velocities close to speed of light, then there are big problems. This सारा calculations haywire. So therefore we avoid using electrons in this case. ठीक है ना, that's the point. और हमें heavy particles in any case चाहिए। Well, there's another query that is from Dhruv, and that is इससे तो हमें कुछ quantized velocities ही मिलेंगे। ठीक है, I got your point. Means what you are trying to say is that इसके और इसके जो वर्क डन है उसी के मल्टीपल में वर्क जो है वेलोसिटीज मिलेंगे। that is understandable. So you cannot get all the velocities. That is understandable. क्योंकि यहाँ पे जो n है ना, n cannot acquire all values. ठीक है, agree. जैसे n अगर 1 होगा तो जो वेलोसिटी होगा, और n 1.2 का जो वेलोसिटी होगा वो हमें नहीं मिलेगा, हमें सीधे 2 वाले वेलोसिटी मिलेंगे, फिर 3 वाले मिलेंगे, फिर 4 वाले मिलेंगे। That is understandable. That is okay. That is understood. वो सारे वेलोसिटीज नहीं मिल पाएंगे हमें, वो 2, 3, 4, 10, 200, 500 की कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटीज होता है नंबर्स, वही वेलोसिटीज मिलेंगे। But I think that's good enough for us because what we need basically is high speed particles. तो मान लो अगर मुझे मिलता है सपोज 5000 और उसके बाद मिलता है 5100, फिर मिलता है 5200, आई एम ओके विद दैट। आई एम नॉट सो फिनिकी कि मुझे नहीं 5156 वाला वेलोसिटी चाहिए, उतना कुछ नहीं है, आई मीन दैट इज ओके। ठीक है, प्लस कहना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट आल्सो कैन बी स्लाइटली कंट्रोल्ड। तो अगर तुम जबरदस्ती बोले नहीं हो तो मुझे तो बीच वाला भी चाहिए, तो इन दैट केस में n को तो ज्यादा छेड़ नहीं सकता हूँ, n 2 के बाद 3 ही हो सकता है, 4 ही हो सकता है, लेकिन मैं मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता हूँ, सो दैट वो जो उनके बीच का वेलोसिटीज है वो भी हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता हूँ, बट यस इन अ पर्टिकुलर सेटअप, मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दो, in that case you cannot get any velocity, you will get only specified velocities where n is a positive, positive is natural number, positive बोलने की जरूरत नहीं, natural number खुद ही positive है, ठीक है ना। हाँ, सत्ता में said exactly the same thing only, and that is कि E और B वेरी अगर हम करें तो बिल्कुल velocities मिलेंगे। तभी मैं कह रहा था कि अगर एक पर्टिकुलर सेटअप बनाओ, पर्टिकुलर सेटअप का मतलब D फिक्स है, E फिक्स है, B फिक्स है, अगर ऐसे करोगे in that case हर वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी। बट अगर मान लो तुम कहोगे कि नहीं मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, तो then I can manipulate E and all those things, E also, D also, D को भी तो सेपरेट कर सकते हैं, and then get different velocities. ऐसे नहीं कि क्वांटाइज्ड होगा। नहीं अक्षित, एक पर्टिकुलर सेटअप पे अगर ट्यूब को अंदर बाहर रखोगे, है ना, ट्यूब को अगर अंदर बाहर रखोगे तो इन दैट केस वेलोसिटी बदलेगा नो डाउट, बट वही होता है कि लाइक अगर एक पर्टिकुलर वो करोगे तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सपोज मैं कहूंगा कि मुझे ना ये वाला बीच वाला सर्कल चाहिए, तो ट्यूब रखने पे भी नहीं मिलेगा। अगर मान लो तुमने डी को आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अक्षित इज आस्किंग, व्हाट अक्षित इज आस्किंग इज दैट क्यों ट्यूब को थोड़ा अंदर बाहर कर लो। देखो ट्यूब को अंदर बाहर करो तो फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्यूब अगर यहाँ रखोगे ना तो तुमको चार्ज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ज यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से इधर जाने के बाद यहीं पे आएगा, इसके बीच में चार्ज आएगा ही नहीं। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बी, ई, डी एंड सो, उनको बदलोगे तो सब कुछ हो सकता है, वो मैं मना नहीं कर रहा, बट फॉर अ पर्टिकुलर सेटअप आर इज नॉट स्पेसिफिकली इन योर कंट्रोल। आर कुछ ही वैल्यूज के बनेंगे, ये वाले जो आर वो कुछ ही वैल्यूज के बनेंगे, तभी देखो एक्सप्रेशन में आर कहीं नहीं आ रहा, ठीक है ना, इट्स ओनली ई, एम, क्यू एंड डी एंड ऑल दोस थिंग्स, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और उस वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर बनेगा, ये वाला जो आर, ये वाला। तो जो मर्जी वेलोसिटीज एक पर्टिकुलर सेटअप पे नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। Excuse me, sir.
सर मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे लेफ्ट कर दूं थोड़ा उसको। अच्छा अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री करा दो। यस सर। ठीक है, दैट इज देयर, बट एक्चुअली द थिंग इज दैट दीस आर सेपरेट रीजन्स, इस पे ना डिमार्केशन रहता है, तो द ट्यूब इज केप्ट वेयर इट इज अबाउट टू एग्जिट, दैट इज व्हाट जनरली इज डन। ठीक है, मैं तुम्हारा आइडिया समझ गया। नॉट दैट इज नॉट पॉसिबल, but yes, what is done is that it is kept here, and once it exits the electric field, तो ट्यूब जो है ना, क्योंकि देखो ये जो चीज होता है ना, ये जो डिमार्केशन दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक प्लेट होता है जिसमें कुछ परफोरेशंस रहता है। तो परफोरेशंस के अंदर अगर ट्यूब को डाल दोगे तो ट्यूब को स्लाइड नहीं करा सकते, तो इसलिए ट्यूब जो है ना इस रीजन में ही रहता है, मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में ही रहता है। अदरवाइज वो स्लाइड, एक्चुअली ये जो चीज दिख रहा है ना, तो मैं थोड़ा वो कर सकता हूँ, ये जो चीज है ना वो ऐसे होता है, मतलब अब कैसे दिखाऊं, ऐसे होता है, और इसके अंदर परफोरेशंस होते हैं, सो दैट चार्ज इसके बीच में से निकल के फिर इसके बीच में निकल के उधर से आया, फिर उसके बीच में निकल से यहाँ से आया, इस तरीके से। तो ट्यूब को जो है स्लाइड भी करना होता है, तो इसलिए ट्यूब को हम इधर ही रखते हैं, ऐसे, ये वाला जो ट्यूब है ना वो इधर, सो दैट इट कैन बी इजीली स्लाइडेड। अगर मान लो इसको इसके अंदर डाल दो ऐसे करके ट्यूब, तो फिर स्लाइड नहीं कर पाओ, अटक जाए, इसलिए ट्यूब को जो है मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ही रखा जाए। दिस इज मोर फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, आई एम सेइंग, ठीक है। बट यस, थ्योरेटिकली अगर तुम ट्यूब को थोड़ा अंदर कर लो, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, उसके पहले तुमने उसको एंट्री दे दिया, वो पॉसिबिलिटी है, बट ऐसे स्कोप होता नहीं है। ट्यूब को जनरली ऐसे ही स्लाइडेबल रखते हैं। दिस इज दैट प्लेट, आई मीन ये जो प्लेट है वो ये, और प्लेट के बगल में मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, ठीक है ना, ये डी हो गया बेसिकली, ये डी का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, ये प्लेट, और ये प्लेट में परफोरेशंस है। परफोरेशंस इसलिए देते हैं सो दैट चार्ज जो है आराम से उसके अंदर से घुस के फिर नाम पे आ जाए, दैट्स द रीजन। So therefore that is a practical limitation कह लो या जो भी है, otherwise things are fine, I mean what you are saying is definitely correct, theoretically yes. Now Satyam has said that current flow के वजह से इंडक्शन भी तो होगा, अभी अभी इससे कॉम्प्लिकेटेड मत करो, there is no चार्ज के ऊपर उस तरीके से इंडक्शन वाला फिनोमेना हम नहीं देखेंगे, that is flux, that is totally different, so not to be applied here, ठीक है, not here. मैंने आज की अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है, नहीं नहीं क्यों होता है की बात नहीं, ये अप्लाई किया जाता है और ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, करना इसलिए पड़ेगा, करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक बार चार्ज इधर गया फिर यहाँ पे आता है, तो उस समय में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगा तब तो वेलोसिटी इधर, फील्ड इधर, तो ये तो अपोज कर देगा, तो वेलोसिटी घटा देगा। हमारे पास पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये कि वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, इस तरीके से स्टार्ट स्लो हो बेशक, लेकिन फिर धीरे 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 स्पीड बढ़ता जाए, दैट इज व्हाट वी वांट, एवरी सर्कल द स्पीड शुड गो ऑन इंक्रीजिंग। तो चार्ज इधर से इधर आ रहा है, तो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तब ना उसका वेलोसिटी बढ़ाएगा, तो वो हम लोग सेट करते हैं so that velocity continuously increases. So that's our headache. We have to ensure that the field oscillates and helps the charge every time. चलो और कोई query है? चलो, let's move on then. That was the last instrument of this particular part of it. Force torque के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स यही तीन है। इसके अलावा अब एक डिस्कशन दूसरा है, that is we have already read about torque on a current carrying wire, loop. So we have read about torque on a current carrying loop. This is what you read. अच्छा, इससे एक इंप्रेशन ये जमता है, इससे एक ये इंप्रेशन जमता है कि इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग लूप तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक वायर हो, यानी मेटेलिक वायर हो। यानी इससे एक फर्दर इंप्रेशन ये होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉन मेटेलिक वायर हुआ या नॉन मेटेलिक कुछ हुआ, तो दैट केस मैग्नेटिक टॉर्क पॉसिबल ही नहीं। क्यों? करंट कहां से आएगा? ऐसे लगता है, लेकिन आर्टिफिशियली अगर हम चाहें तो दैट केस नॉन मेटेलिक सिस्टम्स में या सेटअप्स में भी हम मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट करा सकते हैं। आई विल रिपीट, नॉन मेटेलिक सिस्टम्स में भी हम मैग्नेटिक टॉर्क करा सकते हैं, ठीक है ना? ओके,
अब देखो कैसे, मैं एक सिंपल सेटअप से स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज मेरे पास एक प्लास्टिक का या प्लास्टिक रिंग है, तो फ्रॉम टॉर्क इन ए करंट लूप, करंट तभी पॉसिबल है मेटल होगा तो, वी आर नाउ ग्रेजुएटिंग टू टॉर्क ऑन ए नॉन मेटलिक वायर। ठीक है, कैसे वो देखो, सपोज एक प्लास्टिक रिंग है, तो प्लास्टिक रिंग को लिया और कुछ सिल्क विल का क्लॉथ लिया और उसको ऐसे अच्छे से रबिंग कर, है ना, रिंग पकड़ के इसको ऐसे अच्छे से रब कर। रब करने से क्या होगा, इसके अंदर लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी आ सकता है। तो नेगेटिव का तो एनालाइज हम लोग करते नहीं, हम लोग पॉजिटिव का करते हैं। जब नेगेटिव होता है तो हम फॉर्मूला में चार्ज का वैल्यू नेगेटिव करते हैं, दैट्स व्हाट वी डू। अब मान लो इस रिंग का जो रेडियस है वो है सपोज r, इसका मास m है, एंड लेट्स से टोटल चार्ज q। ध्यान रखना ये एक प्लास्टिक का वायर है या रिंग है, तो देयरफॉर इट कैन नॉट कैरी करंट। हाउएवर सपोज मैंने क्या किया, मैंने इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो अभी क्या होगा, इसका टॉर्क होगा 0। क्यों, करंट तो है, चार्ज है, पर चार्ज होने से क्या होता है, करंट जब तक ना हो तो फिर टॉर्क तो आएगा नहीं। लेकिन मैं इसमें टॉर्क क्रिएट करा सकता हूं, कैसे, मैं एक काम करता हूं, इस रिंग को अपने ही प्लेन पे ओमेगा से घुमाता हूं। सो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी इन इट्स ओन प्लेन। यानी मेरे पास रिंग तो नहीं है, बट मान लो अगर ये रिंग इमेजिन करो, तो ये रिंग अपने ही प्लेन पे घूम रहा है। इमेजिन करो ये रिंग है, ठीक है ना, रिंग अपने ही प्लेन पे घूम रहा है, नॉट लाइक दिस, दैट वुड बी अ डायमेट्रिकल एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, उसके तरीके से घूम रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ द क्वेश्चन इज दैट विल इट एक्सपीरियंस टॉर्क, द आंसर इज अब तो करेगा। क्यों, क्योंकि भले ही ये नॉन मेटलिक वायर हो और उसमें करंट पॉसिबल ना हो इस वाले में, लेकिन एक चीज तो है ना कि ये चार्ज तो मूव कर रहा है। So therefore even if the charge is relatively fixed on the ring, even if the charge is relatively fixed on the ring, but because the ring is rotating, so the charge is also effectively rotating, है या नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ये जो चार्ज है ना ये घूमता रहेगा, that will constitute what we can call as some kind of a current। ये थोड़ा अलग टाइप का करंट है, इन द सेंस कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक वायर में जो करंट होता है वो चार्ज मेटल के अंदर से फ्लो करता है, लेकिन इसमें अंदर से कुछ नहीं हो रहा है, चार्ज बाहर बाहर है और बाहर बाहर ही रहता है, लेकिन घूम रहा है, तो भी इलेक्ट्रिक करंट हो गया। यानी इसका एक म्यू तो बनेगा। म्यू क्या होता है, एन आई है तो एन तो 1 है, आई इंटू ए तो पाई आर स्क्वायर। अब आई को क्या लिखे, देखो अगर चार्ज क्यू टी टाइम बाद अगर एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो वी कैन कॉल दिस एज द इफेक्टिव करंट क्यू बाय टी। मुझे पता है कि ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, तो टी क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी इक्वल टू, ठीक है ना, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा चला गया ऊपर और एक पाई कैंसिल हो जाए, तो क्यू ओमेगा, चलो ठीक से लिख देता हूं, क्यू इनटू पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है ना, बाय 2 पाई बाय ओमेगा। तो इससे क्या होगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। देख लो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि इफेक्टिवली एक म्यू तो बन गया, है या नहीं। अच्छा इसमें एक और चीज भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज गायरो मैग्नेटिक रेशियो। So you might obviously ask you what is this gyromagnetic ratio? Gyromagnetic ratio is basically ratio of by L. L is what, angular momentum। तो इसका angular momentum क्या होगा, है ना, तो इसका angular momentum होगा L is equal to I ओमेगा, रिंग का I क्या होगा, m r स्क्वायर, यानी इक्वल टू m r स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो यानी अब म्यू बाय L क्या हो गया, देखो म्यू तो आ गया q ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 अपॉन L, L is m r स्क्वायर ओमेगा, यानी गायरोमैग्नेटिक रेशियो म्यू बाय L इज इक्वल टू, देखो सारा कैंसिल हो रहा है, r स्क्वायर ओमेगा वगैरह सब कैंसिल है, हाफ ऑफ चार्ज मास रेशियो।
ठीक है, चलो, that was the calculation. This was a fundamental thing. Now let's graduate to something else. Suppose instead of a plastic ring, I do the same calculations for a plastic sheet disc rather. Go ahead and do the calculation. यानी अभी जो हमने किया है, तीन चीजें किया है. एक तो इसका म्यू निकाला, दूसरा तो खैर पहले से पता था, एंगुलर मोमेंटम निकाला, और दोनों का रेशियो निकाला, which is called as gyromagnetic ratio for this ring. So gyromagnetic ratio for the ring becomes half of charge mass ratio. That's what we see as the result. तो एक काम करते हैं, प्लास्टिक रिंग ना यूज करके अब हम सपोज यूज करते हैं प्लास्टिक डिस्क. तो डिस्क में तो पूरे डिस्क में चार्ज है क्यू, और एज यूजुअल वही सब सेम चीजें है, डायमेंशन आर एंड रोटेटिंग विद ओमेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट. अच्छा, एक बार म्यू मिल गया तो टॉर्क भी मिलेगा, म्यू क्रॉस बी एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आवर प्राइमरी जॉब वाज टू फाइंड आउट म्यू, which we have found out in this case particularly as q omega r square by 2 for a ring. Go ahead for a disk. जल्दी निकालो, डिस्क के लिए जल्दी निकालो जरा, क्या म्यू आएगा. तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट करेंगे, और तो कोई वो नहीं है, रिजल्ट नहीं, और तो कोई तरीका नहीं है. चलो, I was just taking attendance अभी. आंसर तो आ गया कुछ कुछ, मैं देखता हूँ कौन कौन आंसर दिया है. धैर्य ने दिया है आंसर, और कार्तिक ने भी सेम आंसर दिया है, एंड नो, अच्छा दोनों का आंसर सेम है. ये दोनों आंसर सेम है, तो लाइक लेट्स क्विकली वेरीफाई. ठीक है, इट्स फाइन, आंसर सही है एकदम. एंड दैट इज इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसके एक छोटा सा रिंग ले लूंगा, ये
तो इसका तो मुझे मालूम है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, तो क्यू क्या होगा ना, क्यू बाय पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर डी आर, दैट बिकम्स द क्यू। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इस पूरे डिस्क को छोटे छोटे रिंग में डिवाइड कर रहा हूँ और सारे रिंग्स के म्यू को ऐड करूंगा तो विल गेट द क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल आर, तो 0 से लेके कैपिटल आर, दैट विल बी द टोटल। तो म्यू कितना आ गया फिर, इक्वल टू पाई पाई कैंसिल, आई थिंक एक 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आर क्यूब डी आर, तो लाइक क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा आर क्यूब डी आर 0 टू कैपिटल आर, फिर आर 4 बाई 4, तो आर 4 का एक आर स्क्वायर कैंसिल, यानी क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, बिल्कुल सही। नॉट ओनली दैट, अभी तन्मय ने भी आंसर दे दिया बाद में, नॉट ओनली दैट आई वुड लाइक टू फाइंड आउट गायरोमैटिक रेशियो आल्सो। सो जीएम रेशियो क्या आएगा, म्यू बाई एल, तो म्यू तो आ चुका है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, और एल क्या होगा, इसका क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, यानी इक्वल टू, ये भी इंटरेस्टिंगली half of charge mass ratio. Well, whether it's a coincidence or a rule or whatever, we will discover very soon. But before we go ahead to find out whether this is some kind of a coincidence, this is some kind of a coincidence. Karthik says 2q by m. No, वो नहीं है. अच्छा हाँ, बाद में correct कर लियो. 1 by half q by m. ठीक, that's right. यानी half of charge mass ratio आ रहा है, gyrometric ratio. पिछले बार भी ये आया था, इस बार भी ये आया। Now whether it's a coincidence or some kind of a rule, well, we'll discover that very soon. उसके पहले एक काम करो, ये जो कैलकुलेशन हमने किया ना, इसको दोबारा करो। इस बार करो for a hollow sphere. So suppose we have a hollow sphere. Suppose we have a hollow sphere, and in that hollow sphere, Q charge is there. I mean, it's a hollow sphere. So like Q charge is there on the surface, of course. Okay, and this is the sphere. तो उससे स्फीयर पता चल रहा है, इसका भी म्यू निकाल, जल्दी निकाल, फाइंड म्यू। यानी फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस। ये डिस्क का था, तो डिस्क का तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर में 4 हो गया म्यू, और गायरोमेट्रिक रेशियो इसका भी हाफ चार्ज मास रेशियो। नाउ गो अहेड एंड फाइंड आउट द सेम फॉर दैट ऑफ अ hollow, hollow sphere. Okay, section has already given the answer, and probably क्योंकि थोड़ा जल्दी आ गया, तो my guess, I don't know whether I'm right or wrong, my guess is that you already assume that it is half charge mass ratio, और angular momentum पता ही है, तो फटाफट उससे निकल जाता है, ठीक है। If you are adopting that, it's fine, but then there is a query, and that is, क्या इसका मतलब कुछ भी कल को क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम यही करेंगे कि गायरोमेट्रिक रेशियो से निकालने के लिए मतलब जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ चार्ज मास रेशियो, और उससे म्यू निकालेंगे, will it be safe? Now that's the query. So in that case, we'll definitely give an answer to that. Manan Dagwal says yes, it's a rule. Saksham says yes sir, it's a rule. नहीं, ऐसे नहीं है। You will soon discover कि ये rule तो खैर नहीं है, ये rule तो खैर नहीं है, but mostly it works. So you might say ये क्या किस तरीके का puzzle हो गया कि ज्यादातर केस में काम करता है और रूल नहीं है, ये कैसे रूल है जो कि रूल नहीं है फिर भी काम करता है। तो अगर कुछ काम करता है कोई चीज तो that should be a rule. चलो कोई बात नहीं, we will discover that. I mean, सत्यम says रिंग टाइप के सबका QM ही होगा as we think gyrometric ratio. Manan Dagwal has given more scientific answer, and that is दोनों के कैलकुलेशन सिमिलर,
अनिरुद्धा सेठ कि ये तो तभी हो सकता है जब रिंग्स पॉसिबल हो, रिंग बन रहा हो. नहीं, not exactly that way. I would rather prefer Manan's answer a little bit better, and that is कि moment of inertia calculate करते हुए और mu calculate करते हुए calculation similar है, इसलिए बराबर आता है. Okay, I would put it a slightly with a different language. मैं इसको थोड़ा सा different language में put करूंगा, but in any case जो भी language में put करूँ तो बात की बात है. इसका mu निकालते हैं process से, not by using the shortcut. क्यों? क्योंकि कल को हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पे गायरोमैग्नेटिक रेशियो हाफ चार्ज ऑफ मास रेशियो नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है. तो ऐसे केस में अगर हम जबरदस्ती हाफ चार्ज मास रेशियो करके आंसर निकाल देंगे तो आंसर तो क्वेश्चन में आ जाएगा, बट वो गलत होगा शायद. तो हर केस में ऐसे नहीं कर सकते. कहाँ कर सकते हैं, थोड़ा सा आया हुआ है अभी अभी जैसे एक और गेस आया हुआ है, एंड दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी. ठीक है ना. अनिरुद्ध सेज कि नहीं, वो तो सेम ही चीज हो गया जो मनन ने बोला और जो मैंने बोला, यानी मैंने बोला इस दस के अनिरुद्ध ने बोला कि रिंग बन रहा हो तो ही हो सकता है. नॉट एग्जैक्टली, आई मीन रिंग का इश्यू नहीं है, है ना. इसलिए सक्षम सेज कि नहीं, ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अगर है तो ही होगा. नहीं, वो भी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है. विल कम टू दैट, जस्ट डोंट वरी. ऐसे भी नहीं है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में होगा और वेरिएबल में नहीं होगा. कई बार वेरिएबल चार्ज डेंसिटी में भी हो सकता है, ठीक है ना, और कई बार यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में भी नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है. तो लाइक ठीक चीजें होंगे, अभी रुक जाओ. अच्छा, हॉलोस्फीयर का करते हैं पहले. तो हॉलोस्फीयर का करने के लिए मैं जो है इसको भी रिंग में ही तोड़ूंगा फाइनली. तो आई वुड डू लाइक दिस कि मैं थीटा एंगल पे एक ऐसे ले लेता हूँ ये. सो दिस इज सपोज थीटा, और ये सपोज है डी. तो ये जो है ना, ये जो चार्ज है ये रिंग के फॉर्म में बने. तो चार्ज कितना होगा, क्यू बाय, क्योंकि एक रिंग का होता है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ध्यान रखना. तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इनटू इसका जो रेडियस होगा वो है आर साइन थीटा. तो इसका जो वो होगा वो है आर डी थीटा. तो जो एरिया बनेगा दैट इज 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि इसका जो रेडियस बन रहा है दैट इज आर साइन थीटा. इसका जो रेडियस बन रहा है वो है आर साइन थीटा, और ये आर डी थीटा है. तो लाइक 2 पाई आर साइन थीटा इनटू आर डी थीटा. ठीक है ना. तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया, तो ये हो गया क्यू इनटू ओमेगा इनटू आर स्क्वायर बाई 2. आर तो वही आर साइन थीटा है, यानी आर साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2. सो दैट्स द नेट रिजल्ट. और इसी को इंटीग्रेट करूंगा 0 टू पाई बाई 2 करके डबल कर सकता हूँ, है ना. 0 टू पाई बाई 2 कर दिया, उससे आधा स्फीयर कवर हो जाएगा इनटू 2 करके, तो ये आ गया. तो मे बी ये 2 तो खैर कैंसिल हो जाता है, एक 2 के साथ ये 2, और 2 पाई कैंसिल होकर 2 हो जाता है. तो ये बन जाएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, है ना. आर स्क्वायर तो ये आर स्क्वायर कैंसिल होकर ये 2 रहेगा, तो बाई 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना. 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा. ठीक. तो ये तो हो जाएगा. अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा को जेड करता हूँ, कॉस थीटा को जेड करूंगा तो ये हो जाएगा डी जेड माइनस डी जेड, यानी इक्वल टू माइनस क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, कोई माइनस है. और क्योंकि मैं z इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर रहा हूं, तो देयरफॉर z 1 हो जाएगा यहाँ पे और 0 हो जाएगा. और अगर लिमिट को स्वैप करो तो ये माइनस हट जाता है. यू रेड अबाउट ऑल दिस थिंग. r square by 3.
So therefore the mu value becomes equal to q omega r square by 3. और अगर इसमें भी अगर गायरोमेट्रिक रेशियो निकालोगे तो जीएम रेशियो जो आएगा इसमें भी वही आता है q ओमेगा r square by 3 अपॉन 2 by 3 ठीक है, हाफ ऑफ चार्ज मास रेशियो। ठीक है, तो इसमें भी वही आ रहा है। अब नेचुरली नेक्स्ट क्यूरियोसिटी होगा सॉलिड स्फीयर का, और सॉलिड स्फीयर का आई थिंक बाय नाउ गेस कर रखे होंगे कि भाई वो तो गायरोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से कर लेंगे, तो आ जाएगा q ओमेगा r square by 5। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट इट कैन बी शॉर्ट एंड, बट देन अगेन यू आर एज्यूमिंग कि ये बराबर होता है। I'll just come to that part as to why is it equal, है ना, लेकिन हर केस में देखने इक्वल आएगा भी नहीं। तो इसके एक लास्ट कर लेते हैं और फिर उस पे जाते हैं कि इक्वल कब होगा और अनइक्वल कब होगा। ठीक है, तो इसके सॉलिड स्फीयर का कर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए इसको यूज कर लेंगे, ये वाला q ओमेगा r square by 3, दैट वुड बी गुड। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं छोटा सा एक पतला सा हॉलो स्फीयर लेता हूँ। So let's say the radius is smaller and the thickness is dr. तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो चार्ज है ये तो हॉलो स्फीयर हो गया, तो इसके q निकालेंगे, ओमेगा r square by 3 करके इंटीग्रेट करेंगे, तो आएगा क्या देखते हैं, यानी जो म्यू बनेगा वो बनेगा q मतलब q by 4 by 3 pi r क्यूब इनटू शेल का वॉल्यूम। तो शेल का वॉल्यूम क्या होगा, 4 pi small r square dr। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इज अ चार्ज, तो q आ गया इनटू ओमेगा r square by 3, तो इनटू ओमेगा इनटू r square by 3 का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल r। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो। तो देखो अक्षय दास की रिंग के अलावा म्यू का मतलब क्या है स्फीयर्स के लिए? नहीं, ये रिंग नहीं है, ये हॉलो हेमिस्फीयर से, सॉरी हॉलो स्फीयर से ध्यान, ये सॉलिड स्फीयर की बात चल रहा है। जो टॉपिक चल रहा है वो है सॉलिड स्फीयर, और जो सेक्शंस लिया है वो है hollow spheres. So the sections that I've taken are hollow spheres, and the entire thing is a solid sphere. Okay, next, equal to 4 pi gets cancelled, this 3 also gets cancelled, so what you get is q omega by r cube into r4 dr 0 to r। तो r5 by 5 होगा, r5 और r cube में r square आ जाएगा। That's it. This was an expected lines, ये तो expected ही था, क्योंकि गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, म्यू यानी q ओमेगा r square by 5 अपॉन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम स्फीयर का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंटम इनर्शिया क्या है, 2 by 5 m r square, तो 2 by 5 m r square into ओमेगा, बस तो कैंसिल हो गया, तो यू विल अगेन गेट हाफ चार्ज मास रेशियो। ठीक है, now coming to the question as to whether this is some kind of universal fact या truth, क्योंकि हर जगह देखा होगा अभी तक यही है ना। देखो बात सही है कि हमने 4 एग्जांपल्स लिया, चारों में यही है, बट दैट शुड नॉट मेक अस जनरलाइज। एक्चुअली क्या होता है इसमें, इश्यू इज दैट इफ द पैटर्न का मतलब होता है मैथमेटिकल फंक्शन इज सेम फॉर चार्ज एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, then gyromatic ratio will be equal to half of चार्ज मास रेशियो। तो चलो अभी तक तो हमने यूनिफॉर्म लिया था और मास भी यूनिफॉर्म था,
चार्ज भी यूनिफॉर्म था, मास भी यूनिफॉर्म था, इस वजह से क्या आ गया, गायरोमेट्रिक रेशियो हमेशा सेम आएगा। कितना आएगा, हाफ ऑफ चार्ज मास रेशियो। उसके पीछे रीजनिंग बड़ा सिंपल है। रीजनिंग इज दैट एंगुलर मोमेंटम में क्या है, मोमेंटम इनर्शिया इनटू ओमेगा। मोमेंटम इनर्शिया क्या होता है, आर स्क्वायर डीएम, इसका इंटीग्रेशन है या नहीं, ये आया था। और ये आई का, और जो म्यू हो रहा है, म्यू में क्या होता है ना, म्यू मतलब क्या होता है ना, वो जो चार्ज है डी क्यू, वो अगर घूम रहा है मान लो, तो एरिया इंटू करंट, आई इंटू एरिया, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू इंटू ओमेगा, ये आ जाता। तो देखो ये भी आर स्क्वायर डीएम है, ये भी आर स्क्वायर डी क्यू है। तो अब ओमेगा पाई ये सब तो कांस्टेंट्स है, वो तो बाद में एडजस्ट हो जाता है एंड ऑल दो, फिर बट द थिंग इज दैट अगर मैं एक डीक्यू चार्ज लेता हूं, लेट्स से अगर सर्कल में घूम रहा है, एक डीक्यू चार्ज सपोज सर्कल में घूम रहा है एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो आई क्या हो जाएगा, डीक्यू बाई टी, नो सॉरी ये नहीं आएगा, आई हो जाएगा dq बाई टी एंड दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा बाई 2, सॉरी ओमेगा बाई 2। अच्छा हाँ ठीक है, तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो पाई और एक पाई आर स्क्वायर भी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, बट फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज म्यू। तो वो भी देखो पाई कैंसिल करके ओमेगा बाहर आ जाता है, तो ओमेगा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर टी, तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो ये क्या बन रहा है फाइनली, इक्वल टू पाई तो कैंसिल, ओमेगा बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर। तो अगर मान लो डीक्यू और डीएम का पैटर्न सेम है ना, तो इन दैट केस क्या होगा, दोनों का इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स सिमिलर आएंगे और फिर वो रेशियो करके वो सब चीजें बता, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई यू गेट द रिजल्ट्स आर सिमिलर, ये भी सेम फंक्शन है, ये भी सिमिलर। बट अगर मान लो अगर चार्ज के वेरिएशन है, तो इन दैट केस डीक्यू भी एक फंक्शन बनेगा और डीएम भी एक फंक्शन बनेगा, तो इन दैट केस फिर वेरिएशंस अलग हो जाएंगे, सो देयर वुड बी अ डिफरेंस है। तो क्योंकि इसके इंटीग्रेशन का पैटर्न सिमिलर है, इस वजह से जो है वो चीज आ अक्षय से दास की म्यू वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ स्फीयर्स के लिए। तो देखो अगर एक स्फीयर को ऐसे घुमा दोगे ना, जैसे ये पूरा स्फीयर है और स्फीयर मान लो घूम रहा है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड डाल दिए, तो देखना उस पर टॉर्क लगेगा, तो पता चला ऐसे घूम रहा है, थोड़ी देर बाद पता चला कुछ और ओरिएंटेशन में घूमने लगेगा, ऐसे कुछ ऐसे हो, यूं ऐसे। तो अगर मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड ना दोगे, तो अगर मान लो घूम रहा है तो घूम ही रहा है कंटिन्यूअसली इनर्शिया के कारण, पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो देखना टॉर्क आएगा इस स्फीयर पे, या मोस्ट प्रोबेबली टॉर्क आएगा, तो इससे क्या होगा ना, उसके घूमने का ओरिएंटेशन बदल जाएगा। So that is the essence of mu in case of a sphere. So don't think that the sphere is immune to that mu thing. Mu uska bhi bane. Mu is not just for a ring; it can be for other things also. अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली पता क्या है, ये Q है ओमेगा आर स्क्वायर बाय 3, यही तो होलो स्फीयर का होता है, ठीक है ना। ये जो है ना, मैंने होलो स्फीयर का रिजल्ट यूज कर लिया, क्योंकि ये भी तो होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर का रिजल्ट यूज कर लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो उसी से जो है सॉलिड स्फीयर का मिल गया। और दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम कार्तिक। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो मैंने बताया इसमें ये बताया मैंने कि अगर वेरिएशन का फंक्शन यानी चार्ज का वेरिएशन और मास के वेरिएशन का फंक्शन सेम है, तब तो सेम है, हाफ चार्ज मास रेशियो, अदरवाइज सेम नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसमें तुमको चार्ज मास रेशियो, सॉरी मतलब डायनामिक रेशियो को चार्ज मास रेशियो के टर्म से बताना है। सपोज आई से दैट सिग्मा मास वाला is equal to sigma into 1 minus r square by capital R square, मेरे पास एक डिस्क of radius capital R, ये डिस्क, और सिग्मा जो चार्ज है Q, that is suppose sigma 2 into
ठीक है, ये दिया हुआ और तुमको निकालना है फाइंड आउट gyromagnetic ratio which is generally equal to something into charge by mass ratio. तो ये समथिंग निकालना और इस बार इसको हाफ मत लिखना क्योंकि इस बार देखो इसका वेरिएशन का पैटर्न आर स्क्वायर वन माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और ये आर क्यूब है, तो देयरफॉर टोटली अलग है। तो वी कैन नॉट राइट डायरेक्टली कि इसको हाफ लिख, इस बार इनफैक्ट यही निकालना है कि इसका नंबर क्या होगा। ठीक है ना, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जल्दी करो जरा। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज देखो, सपोज अगर सिग्मा क्यू होता इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो इसको हाफ लिख देता मैं, क्यों? देखो इसका भी पैटर्न ये है, इसका भी पैटर्न ये, तो सेम पैटर्न हो गया। तो अगर सिग्मा क्यू यानी चार्ज का वेरिएशन का पैटर्न ये होता, इसी के जैसे होता, बस सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 होता, दैट डजंट मेक, वो तो कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वेरिएशन का पैटर्न देखना होता। तो अगर पैटर्न सेम है तो इसका आंसर हाफ होता है, दैट इज श्योर। वो ट्राई करके देख सकते हैं कभी और, बट इस वक्त बराबर नहीं आएगा, देख लेंगे। तो इस बार हाफ आना कोई गारंटी नहीं, बाय फ्लूक अगर आ जाए तो अलग बात है। कई बार होता है ना कि जैसे दो अलग अलग इंटीग्रेशन का भी आंसर तो सेम आ सकता है, तो ऑल दीज आर मैटर्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें एक्चुअली टोटल 4 इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे। इसमें टोटल जो है तुमको टोटल 4 इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज इसी से आ जाएगा, सिग्मा 1 इंटू 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर 0 टू कैपिटल। ठीक है, तो 2 पाई सिग्मा 1 तो चलो बाहर चला गया, और आर डी आर 0 टू आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर डी आर 0 टू आर, तो ये आ जाएगा आर माइनस आर बाई 3, तो 2 आर बाई 3 4 आर बाई 3, यानी 4 बाई 3 बाई सिग्मा 1। ठीक है ना, 4 बाई 3 पाई सिग्मा 1, आर क्यूब, तो आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 4, तो 1 बाई 4 तो आधा आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा, 1 बाई 2 पाई सिग्मा 1 इंटू आर स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्यू, ऐसे ही एम आएगा, एम आएगा कितना? सर आपने एक्सप्रेशन उल्टा लिख लिया सर वो m का एक्सप्रेशन लिख दिया क्यू की अच्छा जगह। तो ठीक है, कोई नहीं, इसको एम लिख देते हैं, इसको क्यू लिख देते हैं, है ना। तो क्यू हो गया सिग्मा 2 इंटू वही चीज आ गया आर क्यूब बाय आर क्यूब 2 पाई आर टी आर। ठीक है ना, तो आर 4 आर 5 बाई 5, तो ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा 2 बाई 5 आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया 2 पाई बाई 5 0 टू। अच्छा अब म्यू, तो म्यू के लिए क्या हो जाएगा? म्यू के लिए ये यूज करता हूं, तो सिग्मा 2 की रिंग यूज करूंगा, तो सिग्मा 2 आर क्यूब बाय आर क्यूब
इंटू 2 पाई आर टी आर, ये तो हो गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन 0 टू आर, तो इज इक्वल टू 2 पाई तो रहेगा नहीं, पाई खत्म हो गया, तो आर क्यूब आर 4 बाई 6, तो बाई 7 आएगा और पाई एक आएगा, यानी पाई सिग्मा 2 बाई 7 यानी 4 हो गया, पाई सिग्मा 2 बाई 7 इंटू आर 4 इंटू ओमेगा भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि टू द पावर 3 4 5 6 तो टू द पावर 7 आएगा और 7 2 कैंसिल तो 5, और जो आई आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एल निकाल लेता हूँ, ओमेगा इंटू आई, तो ओमेगा इंटू आई बोलते क्या होगा, ये तो सिग्मा 1 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर टी आर, ये हो गया एरिया इंटू दिस मास आ गया इंटू आर स्क्वायर, रिंग है तो ये बनेगा 0 टू आर, 2 पाई ओमेगा बाई आर स्क्वायर, 2 पाई ओमेगा बाई आर स्क्वायर इंटू, अगर क्या आ रहा है 2 पाई सिग्मा 1 तो आएगा, ठीक है ना, अभी कैलकुलेशन खुद ही कर लो, तो एक तो आर क्यूब आ रहा है, तो आर क्यूब का हो जाएगा आर 4 बाई 4 और एक आर 5, तो आर 6 बाई 6, तो आर स्क्वायर आ गया, यानी आ जाएगा कितना, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 6 है ना, तो आएगा 1 बाई 12 यानी बाई 6 आ, तो बाई 6 आ गया और आर स्क्वायर, ठीक है ना, अब निकालो एरोमेटिक रेशियो, तो पहली बात तो म्यू कितना आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा आ गया और ये भी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा आ गया, है ना, एल भी, तो देखो क्या आ रहा है, फिर उनको एम के टर्म्स में भी लिखना पड़ेगा, तो लाइक म्यू हो गया, एक काम करें म्यू को भी चार्ज के टर्म्स में लिखो, ये तो 2 बाई 5 है, तो 2 बाई 5 करो तो इंटू 5 बाई 2 करना पड़ेगा, 5 बाई 2 14, यानी इक्वल टू 5 अपॉन 14 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, और जो एल आएगा वो आएगा, मास कितना है 1 बाई 2 बाई सिग्मा 1, तो 1 बाई 2 बोलो 1 बाई 3 आ गया, यानी 1 अपॉन 3 आई ओमेगा, या तो आई होप आई हैव डन द कैलकुलेशन करेक्टली, आई मीन तो यानी म्यू बाई सर आर की पावर 4 आएगी एल में लास्ट में, नहीं एक्चुअली क्या ना, एम में भी तो आर स्क्वायर है ना, सर नहीं वो एल में लास्ट में आएगा पाई ओमेगा सिग्मा 1 बाई 6 आर की पावर 4, किसका बात कर रहे हो, ये वाला इसके नीचे एल एल, आर की पावर 6 आएगी और अपॉन आर स्क्वायर आएगा, सर आर की पावर 4 है, और 4 है ना, अगर 4 नेट नेट आ गया ना, तो उसमें से मास तो एब्जॉर्ब हो गया हाफ करके, तो आई इंटू ओमेगा करते हैं इसमें, ठीक है ना, तो नहीं मास के टर्म्स में कर रहा हूँ ना मैं, सॉरी एम आर स्क्वायर है ना, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये चीज आएगी, तो उधर 1/3 आ गया और इधर भी आ गया ओमेगा, तो लाइक वो सब खत्म हो जाएगा, तो यानी बेसिकली म्यू बाय ये आ गया 5 अपॉन 14 अपॉन 1 बाई 3, है ना, ऐसे कुछ आ रहा है, चलो चेक कर लेना, आई थिंक शायद 15 बाई 14 आ रहा है, और क्यू बाय एम तो आएगा ही,
मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि देखो रेशियो अलग आ गया क्योंकि फंक्शन अलग। अब जो है ना, अब एक बार ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिजल्ट। हमें तो अभी तक हम लोगों ने किया था वो क्या था, हाफ था, और इस बार क्या है 15/14। अच्छा रीजन क्या है ना, जैसे अभी बता रहे थे 15/14, हाँ सक्षम का भी 15/14 आ गया, मनन का भी आ गया, ठीक है। यानी ये जो रेशियो आ रहा है, इज इट हाफ? नो, है या नहीं? तो देयरफॉर ये जो हाफ आ रहा था अभी तक, दैट वाज बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन मास वाज एग्जैक्टली द सेम। जबकि यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज का और मास का रेशियो अलग था, और इसमें चार इंडिकेशन करना पड़ा, दैट मेड इट लॉन्ग, नो डाउट, बट एटलीस्ट वी गॉट थ्रू कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व किया, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ दिस gyrometric ratio, and in this case it turned out to be 15/14 and not half. Fine. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, we will carry on in the next class, ठीक है। till then next class means कल, तो कल एक नया एरिया पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। फाइन, चलो आज के लिए इतना ही, फिर we'll move tomorrow. Thank you, sir. Okay बेटे, Thank you, sir. Thank you, sir. thank you, bye bye. Thank you, sir. Okay बेटे, bye bye. Thank you, sir. Thank you बेटे, bye bye. Thank you, sir.